Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 6, the adjectives. So let's start the chapter. Chapter number 6, the adjective. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. The farmer is poor. The beggar is blind. I have 2 apples. In the above sentences, the words poor, blind and 2 are qualifying the nouns farmer, beggar and apples respectively. Hence, they are the adjectives. ऊपर जो अभी हमने sentences पढ़े उसमें जो colored words हैं poor, blind, two, ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी noun को qualify कर रहे हैं या हम कह सकते हैं कि ये हमारे noun को describe कर रहे हैं. जैसे first sentence में poor किसको describe कर रहा है? फार्मर को. ब्लाइंड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बैगर को. और एप्पल्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? 2. मतलब एप्पल्स कितने हैं? 2. तो ये सारे के सारे कलर्ड वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स. Thus we can say the words which qualify the nouns and pronouns are called the adjectives. तो वो words जो nouns को qualify करते हैं या pronouns को qualify करते हैं उन्हें हम कहते हैं adjectives. Kinds of adjective. Adjective के kinds देखते हैं. First, adjectives of quality. Second, adjectives of quantity. Third, adjectives of number. Fourth, demonstrative adjectives. Fifth, interrogative adjectives. Sixth, possessive adjectives. First is adjectives of quality. The adjectives which show the quality of a person or a thing are called the adjectives of quality, like big, small, large, black, beautiful, ugly, handsome, etc. वो adjectives जो किसी person या किसी thing की quality बताते हैं उन्हें हम कहते हैं adjectives of quality. जैसे big, small, black, beautiful. कुछ examples पढ़ते हैं. शुभ is a fat boy. These are beautiful flowers. Delhi is a big city. तो यहाँ पर boy कैसा है? Fat. Flowers कैसे हैं? Beautiful. City कैसी है? Big. तो ये colored words nouns की क्या बता रहे हैं? Quality. Second, adjectives of quantity. The adjectives which mention the quantity of a thing and answer the question how much are called the adjectives of quantity. Words like much, little, enough, sufficient are adjectives of quality. वो words जो किसी की quantity बताते हैं, मतलब वो बताते हैं कि कोई चीज कितनी है. How much. How much का आंसर हमें देते हैं वो words कहलाते हैं adjectives of quantity. जैसे much, little, enough, sufficient, ये सारे words हैं adjectives of quality. कुछ examples पढ़ते हैं. There is some water in the bucket. There is a little milk in the glass. I have lots of money. तो यहाँ पर some, little, lots हैं adjective of quantity. Now third, adjectives of number. The adjectives which tell how many persons or things are called the adjectives of number. वो adjectives या वो words जो हमें ये बताते हैं कि कितने पर्सन हैं या कितनी थिंग्स है, मतलब उनका नंबर बताते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. एग्जांपल्स, देयर आर 50 ट्रीज इन माय गार्डन. यू डोंट सी मैनी बर्ड्स इन द सिटी. अ हैंड हैज 5 फिंगर्स. नेक्स्ट, फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. The adjectives which point out some person or thing and answer the questions which are called the demonstrative adjectives. Words like this, that, these and those are demonstrative adjectives. वो adjectives जो किसी person को या किसी thing को point out करते हैं और हमें किस question का आंसर देते हैं? Which. वो कहलाते हैं demonstrative adjectives. जैसे this, that, these, those, ये सब demonstrative adjectives हैं. Examples देखते हैं. These books are mine. This girl is very intelligent. Those mangoes are sour. Fifth, interrogative adjectives. The adjectives which are used to ask questions are called the interrogative adjectives.
Words like what, whose, whom and which are interrogative adjectives. वो adjectives जो question पूछते हैं वो कहलाते हैं interrogative adjectives, जैसे what, whose, whom, which, ये सब interrogative adjectives हैं. Examples पढ़ लेते हैं. Whose bicycle is this? Which mobile do you like? What kind of boy is he? Sixth, possessive adjectives. The adjectives which are used to show possession are called the possessive adjectives. वो adjectives जो possession show करते हैं वो कहलाते हैं possessive adjectives. Examples देखते हैं. This is my pen. He wrote his essay. These are their cups. तो यहाँ पर my, his, their ये हैं possessive adjectives. Now it's time to answer. A एक्सरसाइज है. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. OMR शीट में हम करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे. फर्स्ट इज द एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द. एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन्स एंड प्रोनाउंस बोथ. C. नेक्स्ट, दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इनमें से क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? गुड. A. नेक्स्ट, दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इनमें से क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है? मच. B. नेक्स्ट, दिस इज अ पजेसिव एडजेक्टिव. इनमें से पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, हिज, योर, ऑल ऑफ दीज. D. नाउ B एक्सरसाइज. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस. आपको एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और उन्हें स्पेस में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर. तो यहाँ पर प्लेयर कैसा है? गुड. मतलब विराट कोहली कैसा प्लेयर है? गुड. तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? गुड. नेक्स्ट, देव इज माई बेस्ट फ्रेंड. देव मेरा कैसा फ्रेंड है? बेस्ट. तो बेस्ट इज एडजेक्टिव. नेक्स्ट, शिवी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. शिवी कैसी गर्ल है? ब्यूटिफुल. तो ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ सी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स. आपको ब्लैंक्स में करेक्ट एडजेक्टिव्स फिल करना है. फर्स्ट इज द लोटस इज अ डैश फ्लावर. लोटस हमारा कैसा फ्लावर है? नेशनल फ्लावर. सेकेंड, आई लाइक डैश ऑरेंजेस. आई लाइक दीज ऑरेंजेस. क्योंकि प्लूरल है ऑरेंजेस तो यहां पर आएगा दीज. नेक्स्ट, डैश पेंसिल इज दिस. तो यहां पर आएगा whose पेंसिल इज दिस. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. रीड एंड अंडरस्टैंड. पढ़ते हैं और समझते हैं. ज्योति इज टॉल. नेहा इज टॉलर देन ज्योति. शिवानी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. In sentence 1, tall is describing the naming word Jyoti, so it is an adjective and in positive degree. Sentence 1 में जो tall word है वो किसको describe कर रहा है? ज्योति को. तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है. The simple form of an adjective is called the positive degree. अगर हम adjective को एक simple form में लिखें तो वो कहलाती है उसकी positive degree. In sentence 2, Neha is compared with Jyoti for the same quality. So, taller is an adjective and in comparative degree. Second sentence में नेहा और ज्योति को कंपेयर किया गया है तो यहाँ पर टॉल की जगह क्या वर्ड यूज हुआ है? टॉलर. तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं एडजेक्टिव की तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? ER. तो टॉल से बन गया टॉलर. When comparison is made between two persons, places or things, it is called the comparative degree. जब दो पर्सन या दो प्लेसेस या दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. We use ER to form the comparative degree. कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER का यूज करते हैं. In sentence 3, the adjective tallest is said to be in the superlative degree. Sentence 3 में जो tallest वर्ड है ये किस में है? सुपरलेटिव डिग्री में.
When comparison is made among more than two persons, places or things, it is called superlative degree. जब comparison दो से ज्यादा persons, things या places के बीच में होता है तो वो कहलाती है superlative degree. We use est to form the superlative degree. अगर हमें superlative degree बनानी है तो हम adjective में क्या लगाते हैं, est. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. अब पढ़ते हैं हम कि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं. Some adjectives form the comparative by adding er and the superlative by adding est to the positive. कुछ adjectives comparative डिग्री कैसे बनाते हैं, उसमें er लगा के, और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, उसमें est लगा के. जैसे ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है. तो अगर पॉजिटिव फॉर्म यंग है तो कंपैरेटिव फॉर्म में क्या लगेगा, er, तो ये हो जाएगा यंगर. ऐसे ही सुपरलेटिव में यंगेस्ट. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. देन टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट. कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. नेक्स्ट रूल देखते हैं. इफ द पॉजिटिव एंड्स इन ई, we add only r and st to form the comparative and superlative. अगर जो पॉजिटिव फॉर्म है उसके लास्ट में e है तो हम सिर्फ r और st ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं. जैसे प्योर, लास्ट में e है तो हम सिर्फ r लगाएंगे, प्योरर, प्योरेस्ट. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट. ब्रेव, braver, bravest. Wise, wiser, wisest. Simple, simpler, simplest. Next rule. When the positive degree ends with a single consonant preceded by a vowel, the consonant is doubled and er and est are added to form comparative and superlative degrees. अगर positive degree के लास्ट में single consonant है और उससे पहले कोई vowel है तो जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाएगा और उसके बाद उसमें er और est ऐड होगा. जैसे सैड, डी है, कॉन्सोनेंट है, डी से पहले वॉवल है तो यहाँ पर डी डबल हो जाएगा और er लग जाएगा. सैडर, सैडेस्ट. थिन, थिनर, थिनेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. फैट, फैटर, फैटेस्ट. हॉट, hotter, hottest. Next rule. If a positive degree ends in y and has a consonant before it, we change y into I and then add er and est to form comparative and superlative degrees respectively. अगर positive degree के last में y है और उससे पहले consonant है तो हम y को हटाकर I लगा देते हैं और उसमें er और est ऐड कर देते हैं. जैसे ग्लूमी, ग्लूमी का हो जाएगा ग्लूमियर, ग्लूमिएस्ट. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजिएस्ट. मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट. इजी, इजियर, इजीएस्ट. प्रिटी, प्रिटियर, प्रेटिएस्ट. We add more and most before some adjectives to form the comparative and superlative degrees. और कुछ adjective से पहले हम more और most लगाते हैं उसको comparative और superlative में change करने के लिए. जैसे faithful, तो हम इसे faithfuller नहीं लिखेंगे तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, more faithful. ऐसे ही superlative में most faithful. Sadly, more sadly, most sadly. Handsome, more handsome, most handsome. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Courageous, more courageous, most courageous. Difficult, more difficult, most difficult. Now it's time to answer. A exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct option को mark करेंगे. First is the degrees of comparison are. comparison की मतलब degrees कितनी है, 3. positive, comparative and superlative. A. Next,
When the comparison is made between two persons or things, dash degree is used. जब कंपैरिजन दो पर्सन्स या दो थिंग्स के बीच में होता है तो कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री, V. नेक्स्ट, सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड, एडजेक्टिव की जो सिंपलर फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, C. नेक्स्ट, टू मेक कंपैरेटिव वी ऐड, कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? ER, B. नाउ B एक्सरसाइज, कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करनी है। पॉजिटिव फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव फॉर्म है। तो फर्स्ट देखिए, शॉर्ट कंपैरेटिव में हुआ शॉर्टर और सुपरलेटिव में हो जाएगा शॉर्टेस्ट। ऐसे ही सेकंड में पॉजिटिव ब्लैंक है, टॉलर टॉलेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? टॉल। थर्ड, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, fill in the blanks with the suitable comparative और superlative forms of adjectives। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ adjectives given है, तो आपको सेंटेंस पढ़ के बताना है कि वहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। फर्स्ट, शिवा इज द डैश बॉलर इन द 11। अब यहाँ पर 11 में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये 2 से ज्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा शिवा इज द फास्टेस्ट। नेक्स्ट, नैनीताल इज डैश देन दिल्ली। यहाँ पर नैनीताल और दिल्ली के बीच में कंपैरिजन है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म मतलब ER लगेगा, कोल्डर। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो यहाँ पर पूरे कॉलेज के साथ कंपैरिजन है, तो सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको एडजेक्टिव्स, उसके काइंड्स और एडजेक्टिव की डिग्री समझ आई होंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।